Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Today I'm with a brand new lecture and it is going to be the most important lecture of the series. So let me tell you first the topic of our discussion today. We are going to discuss sentence, kinds of sentences and classification of sentences. You may call it structure-wise kinds of sentences. There are three things, but it will take time to elaborate that. This is going to be lecture number 5A. It's the first part of lecture number 5. So first of all, let me remind you when I told you about the definition of grammar. So I told you the easiest definition is the set of rules and regulations which guides us to make a correct sentence. It means a correct sentence means every correct sentence. Every sentence should be correct. But first of all, we should know what is sentence. So sentence, look at the definition of sentence here. A group of meaningful words. Related words, meaningful words. A group of meaningful words which conveys a complete sense. Focus should be on complete sense and group of meaningful words. It is a group of meaningful words which conveys a complete sense is called a sentence. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो इस तरतीब से रखा जाए जो कि एक मुकम्मल सेंस आप तक कन्वे करे उसे सेंटेंस कहा जाता है. What is meant by this meaningful? If it is meaningful, it ought to be meaningful. What is meant by it? Look at this example. And is it correct? Any spelling mistake? Any objection? And look, she essay writes skillfully. Every word is correct. Every word is correct here. Is it? Every word is correct here. Does it give any meaning? Does it convey any sense? Does it convey any sense? Think about it. No. Answer is no. Now I rewrote it. And then look at this. She writes an essay skillfully. Now it is a group of meaningful words which conveys a complete sentence. Which conveys a complete sense is called a sentence. अब इस सेंटेंस के ऊपर आए. अब आपने सिर्फ ये देखना है यहाँ पर मैंने मीनिंगफुल को के जम्बड़ किस्म के वर्ड्स दिए तो इसने अपनी कोई भी अपना मतलब नहीं दिया. अल्फाज हर अपनी जगह पे ठीक है. जब मैंने रीअरेंज किया इसको और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अपनी अपनी जगह पे रखा तो इसने अपनी प्रॉपर सेंस दी. इससे पहले हम आगे जाएं, हमें ये देखना है कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, लुक एट दिस. एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. हर सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं. आप सिंपल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं. एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. लुक एट दिस. वन इज सब्जेक्ट, other is predicate. Look at this. Subject क्या होता है, predicate क्या होता है, ये देखिए. A word in a sentence, किसी भी फिक्रे के अंदर एक ऐसा लफ्ज about which something is told or said, जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाता है. In a sentence, sentence के अंदर is called a subject. फिक्रे के अंदर एक ऐसा लफ्ज जिसके बारे में कुछ बताया या कहा जाता है उसे फाइल कहते हैं. मैं पहले भी इसको क्लियर कर चुका हूं कि जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ डूअर नहीं होता. कि डूअर के यानी कोई काम करने वाले ही की सेंस ना ले. जब ये लिंकिंग वर्ब के साथ आता है तो स्टैटिक कंडीशन में होता है. ये स्टेट ऑफ बीइंग को भी डिस्क्राइब करता है. तो ये दोनों चीजों को इनकैम्पास कर रहा है. यहाँ प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which gives information about the subject is called a predicate. The part of a sentence which gives information about the subject. फिक्रे का वो हिस्सा जो फाइल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. Look at examples. Here is one example.
Tausif is my favorite student. Tausif is my favorite student. Look at this. Tausif is subject here. And rest of the sentence is giving information about Tausif. Look at this. Tausif is my favorite student. Is my favorite student. Tausif subject. What Tausif? Is my favorite student. ये जितने सारा के सारे जितने भी अल्फाज हैं, अब इस तौसीफ इस सब्जेक्ट को के बारे में हमें इंफॉर्म कर रहे हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक और सेंटेंस मैंने लिया प्रेजेंट सिंपल से है, ये लिंकिंग वर्ब का इसमें यूज था, मैं प्रेजेंट सिंपल से एक एग्जांपल लिया है। तो यहां पर देखिए बेटा, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। शी सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग। She sings a melodious song. She subject है and rest of the part is giving information about this subject. तो हर सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। जब हम इसको तरकीब से रखते हैं, अगर ये लिंकिंग वर्ब या पजेसिव वर्ब या कंपल्सिव वर्ब के लिए यूज हो रहा होता है तो इसकी जो फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। जब ये टेंसिकल फॉर्म में यूज होगा तो फिर तीन तरीकों से हम इसको कर सकते होते हैं। वो तीन जो तरीके हैं, यहाँ पर ये एक फार्मूला होता है SV सब्जेक्ट और वर्ब, एक होता है SVO सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एक फार्मूला होता है सब्जेक्ट VOO। इट वुड बी न्यू फॉर यू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। या आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा जब मैं हम वर्ब के ऊपर आएंगे कि वो कौन से वर्ब होते हैं जो डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। उनके साथ कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हर सूरत आपने डबल ऑब्जेक्ट लेना है उन्होंने, और कुछ के साथ आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। यानी ये तीन तरीकों से हम टेंसिकल फॉर्म में अंदर लेते हैं। राइट नो अब मैं आपको जो जनरल पार्ट्स इसके बताए वो दो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आप इस पे जरा फोकस रखिएगा। नॉट लेट मी टेल यू अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फिक्रात की किस्में कितनी होती हैं, ये हर जुबान की ग्रामर के अंदर सिमिलर होता है। हर जुबान की जो ग्रामर होती है, वेदर दैट इज पंजाबी, उर्दू, पर्शियन और एक्सेप्ट इंग्लिश, every other language carries similar sentence structure, but we are talking about English sentence structure। तो इसमें मेरे पास 5 किस्म के सेंटेंस हैं। सेंटेंसेस की 5 किस्में हुआ करती है। सबसे पहला बेटा assertive sentences और declarative sentences और you may call them statements। पहली किस्म होती है बेटा assertive या declarative sentences और statements। उर्दू में इनको बयानिया या खबरिया फिक्रे कहा जाता है। नंबर 2 पे आए बेटा, नंबर 2 पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 पे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये होते हैं सवालिया या इस्तफहामिया फिक्रे। अगर मैं जब इसको एलैबोरेट करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तो उसकी मैं सारी इसके बारे डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अब मैं साथ साथ बताता जाऊं यहां पर कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ये फर्दर इसकी 4 सब डिविजन्स हैं, 4 क्लासिफिकेशंस हैं। ये मजीद 4 जाके किस्मों में तकसीम हो जाते हैं। जो सवालिया या इस्तफहामिया फिक्रे हैं उसका पहला जो आप ये गौर से देखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एक WH क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पूछे जाने वाले व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ। ये तीसरी किस्म होती है बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, और फोर्थ होते हैं टैग क्वेश्चंस। I'll definitely elaborate each and everything whatever I'm going to show you। ये तो अभी मैं सिर्फ आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि इसके ऊपर फर्दर हम बात करने जा रहे हैं। अब अगर तीसरी किस्म के ऊपर आते हैं बेटा तो ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हमारे जो आमतौर पे ग्रामर के अंदर हुक्मिया फिक्रे इन्हें लिखा जाता है, इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये या तो इंशाइया फिक्रे होते हैं या अमरो नहीं के फिक्रात होते हैं। अमर किसी काम करने का कहना, नहीं किसी काम करने से रोकना। अब इन्हें हुक्मिया फिक्रे नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें किसी काम करने का कहने के अंदाज
3 से 4 होते हैं। कभी आप ऑर्डर भी देते हो, तो कभी रिक्वेस्ट करते हो, कभी सजेस्ट करते हो, तो कभी एडवाइस करते हो, और रोकने के भी यही तरीके होते हैं। इसलिए सिर्फ हुक्मिया इसमें से निकाल लेना, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सो करेक्ट वन इज इंशाइया फिक्रे या अमरो नहीं के फिक्रा। चौथा बेटा ये आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तजाबिया, हैरानिया फिक्रे। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना लाजम होता है, जिसमें किसी भी किस्म की हैरत का इजहार करा जाता है। अब इसके अंदर बेटा हम बात करेंगे, देखिए मिड 80s तक ये सिर्फ 4 इकसाम, इससे पहले की ग्रामर उठा के देख ले आप, ये 4 इकसाम ही दी जाती थी। ये जो 5th है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया या तमन्नाया फिक्रे, ये कभी एक्सक्लेमेटरी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में मॉडर्न ग्रामर के अंदर इसको 5th काइंड के तौर पे सेग्रीगेट कर दिया गया, और ये फिर 5वीं किस्म हमारे सामने आई ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया या तमन्नाया फिक्रे। अब इसको सेग्रीगेट करने का पर्पस और इसके अंदर डिफरेंस है, ये मैं इसकी एलैबोरेशन में आपको बताऊंगा। अब बेटा फर्दर आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, इनसे जब स्टेप बाय स्टेप हर एक को अलग-अलग डिस्कस करने के बाद then I'll come towards classification of sentences, and for your own common understanding it can be called as structure wise kinds of sentences। इसको structure wise kinds of sentences भी बोला जाता है, classification of sentences भी आप कह सकते हैं। ये साख्त के एतबार से फिक्रात 4 तरह के होते हैं, साख्त के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 बेटा सिंपल सेंटेंसेस, इन्हें आप सादा फिक्रात कहते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंसेस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रात, कंपाउंड सेंटेंसेस, मुरक्कब फिक्रात, 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पेचीदा फिक्रात, और 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मुरक्कब पेचीदा फिक्रात। बेटा इंग्लिश के अंदर जितना आपका स्टैंडर्ड एलिवेट करना होता है, आप बिल्कुल मैंने जैसे आपके लेक्चर्स हैं अल्फाबेट से शुरू किया, इसी तरह सेंटेंस जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें सिंपल सेंटेंस से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल जो होता है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तक आना चाहिए। चूंकि जब हायर एग्जामिनेशंस के लिए आप जाते हो तो फिर बहुत छोटे सिंपल या कंपाउंड तक गुजारा नहीं होता। यू कैंट इम्प्रेस द पेपर चेकर, यू कैंट इम्प्रेस द एग्जामिनर। आपने इम्प्रेस करना है, इंप्रेशन देना है, आपने क्रिएटिव राइटर, रियल क्रिएटिव राइटर बनना है, तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सीखना होगा। और अब ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, होप सो कि आप इसको पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड करेंगे, और मेरे साथ साथ जिस तरह बाकी चीजें इससे लिंक कर रही हैं, अब ये सारा मैंने आपको एक पिक्चर शो करवा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर इनको टर्न बाय टर्न इनको एलैबोरेट करूंगा। तो आप इस वक्त तक के लिए ये चीज अपने जहन में रखिए कि हम ये इतनी जनरल काइंड्स होती हैं, ये स्ट्रक्चर वाइज काइंड्स हैं, और जो मैंने इसके बारे में फर्दर डिटेल्स बताई हैं फ्रॉम सेंटेंस टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक, आपने ये जहन में रखना है। और इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट लेक्चर में मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की डिटेल विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, रिमेंबर मी इन योर बेस्ट प्रेयर्स with this belief that you are the part of my best prayers as well. Allah Hafiz.